Welcome you all to the session 2 of International Webinar Series Pratibimb, Social Enigma and its Resolutions. We had our first session yesterday with Dr. P. Shaktivel, and he discussed with us the threats related to cyber world and measures for cyber security. This webinar, as you can see through our posters and our information that we have shared, has been organized with the help of Kind Beings NGO and eSamad Foundation. Kind Beings NGO has been working extensively for the upliftment of children living in slum areas by providing them free educational facilities. And eSamad itself has been functional in the field of journalism since 2008, and and they are working extensively for being the voices of the most rural corners of Bihar. They have also come forward to be the helping hands during the most crisis times of disasters uh, uh, and pandemics like encephalitis. Today, for our second session, we have with us Dr. Praveen Kumar Jha. He is a well-known radiologist active in Norway right now, Kongsberg, Norway. He's also a bilingual author. He has written a dozen of books, written various columns in newspapers, magazines, and digital media. His book Coolie Lines, which was launched just last year, has gained much praise from people and youngsters. And the book, especially, is about indentured laborers in colonial India. And the book has been received very well, and it recently has been even nominated for Valley of Words Award 2020. He has also written a book named Wah Ustad. Wah Ustad itself is a very famous phrase. With this phrase only, you all can remember the very well-known name of Zakir Hussain Saab. And he is still writing many books right now. He has written narrative biographies of Jayaprakash Narayan and John F. Kennedy. He has wrote travelogues on Iceland and Netherlands. His recent release is Khushhali Ka Panchnama, which is based on cultural aspects of Scandinavia. He is presently living in Kongsberg, Norway. And today, the topic of discussion that he is going to share with us is Corona, Scandinavia, and schools. He is himself a doctor and has been speaking a lot about Corona and its and the cases that we are facing and everything that we can expect a doctor to be speaking of. But today he'll be taking another path. He'll be discussing with us the education system in his region that he is living in. And I would invite him on the screen right now, Dr. Praveen Kumar Jha now. Welcome, sir. Welcome to the session. Just a minute. Okay. Namaskar, Komal. Thank you for inviting me to this webinar. And I am not a social studies person, but I am a doctor, as you said, and I write some books in Hindi. That's why I will keep my conversation in both English and Hindi. मैं प्रवीण झा, मैं चिकित्सक हूँ नॉर्वे में और मैं हिंदी में लिखता भी हूँ. मेरी किताबें का जिक्र कर दिया है कोमल ने. आज हम लोग बात करेंगे कोरोना, स्कैंडिनेविया और शिक्षा. कोरोना, स्कैंडिनेविया and education. That's what vague kind of topic I have taken, and I will talk about how the situation of corona is in the world and in Scandinavia, how it is handling and how we can learn from it. Yes, and that's I think I can start now the session. Is it fine, Komal, if I start with the presentation? Yes, sir. Yes, so I am switching to the presentation. I will be showing some pictures and talking in the background and try to discuss how we can handle the social illnesses, the situations, and how the education system is suffering or how it can be handled in present situation of corona in the world. So let's, I will just switch on to the, I will just share. Yes. Yes, sir. It is being shared. Just click the hide button, the bar coming in the down section of this PP. Click on the hide button.
Yeah, somehow it is hanged. Anyway, I will just try to. Okay, so begin the session. No problem. Yeah, so we will talk about Corona, Scandinavia, and education. Scandinavia is a region of Europe which is different from all of the world, and it comprises of Norway, Denmark, Finland, Sweden, and Iceland. So we learn a lot. Even I think the education minister of Delhi, Manish Sisodia, he has been to Finland to adapt it to the Delhi schools, and he did adapt, in fact, some of the aspects. And we need to learn a little bit from Scandinavia. And because I live there, I can probably talk about the culture and all. And I am an Indian doctor, so I will also talk a little about how the Indian health system can adapt to the situation, or education system can adapt to the situation. But that is more relevant for the Indian doctors, actually. So I will just focus on what I see around me and what I perceive of the corona situation in the world. So let's say, where do we stand? This is typical view of the Scandinavian countries. Presently, if you see the world, the color graph of the corona situation in the world. So we see the Canada, the American continent as a whole, it's looking pretty bleak situation over there, with Canada, United States, Mexico, down to the Brazil, Peru, Argentina. Every region is affected, and in Europe also it is not completely gone. If you see the color coding in the I have some Norwegian names. So Sverige, Sweden, or Great Britain or Spain, they are still having a lot of situation. तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना किस तरह से कहां फैला है. इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, ये चीन से शुरू हुआ था, और उसके बाद किस तरह से पूरी दुनिया में फैला और अमेरिका तक पहुंच गया. सो वी हैव the growth of corona from one continent, from Asia to America. और ये तभी पॉसिबल हुआ बिकॉज अब ग्लोबलाइजेशन है. सो द ट्रेड्स, द पीपल मूवमेंट, टूरिस्ट मूवमेंट, everything is from one continent to another continent, which we see in present world. Except for closed countries, the rest of the countries are quite moving. Especially I live in Europe, and European Union, as you know, they don't have any visa norms. You can just cross the border from all the way from up to the Arctic Circle down to the Italy or islands there. So you don't need a visa to go anywhere. So it's very easy to spread an infectious disease right now in the world. And we see how quickly Corona took over the whole world. And I have earmarked India and where I live, the Scandinavia. And in Scandinavia, if you see the typical picture of a snake coming from the top, as they say, the double-mouthed snake. One is Sweden, it's marked Sverige there, and just adjacent to it is Norway. So if you see the red line, there is a kind of curtain between the two countries. One country is hugely affected by corona, and another country doesn't have a case at all. So how did this happen? How did one country which has a similar kind of environment, similar kind of culture, got a lot of corona cases, and another country didn't get affected by corona that much? How did this happen? Because when we compare India to China, when we compare Italy to France, when we compare America to India, the things are a little different. We don't know what is happening where. All these countries have different cultures, different politics, different kind of civic sense. So it's not an actual parallel. There is no actual parallel to India which you can compare that how did they handle. So, but here in Scandinavia, we have two parallels, Sweden and Norway. And we will see how socially or politically or with the civic sense, these countries have handled the situation differently, and how we can learn from it that what we can do a little better. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वीडन और नॉर्वे, जो सबसे ऊपर में आर्कटिक सर्किल के दो देश हैं, उसमें एक में कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ है, वहां रेड कलर का कोड दिखा रहा है,
और उसके साथ ही नॉर्वे है जो कि बिल्कुल उसी की तरह की संस्कृति है, उसी की तरह का मौसम है, वहां पर केस ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, ये जानकर हमें शायद सूत्र मिल जाए कि भारत में हम क्या कर सकते हैं और कैसे किस तरह के मेजर्स ले सकते हैं और किस तरह की सामाजिक बदलाव कर सकते हैं जिससे कि हम कोरोना को हैंडल कर सकें। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द सिचुएशन व्हिच वी हैव इन द वर्ल्ड राइट नाउ। I have marked it according to the deaths. So United States at the top, around 1,29,000 deaths already. Brazil, Great Britain, Italy, France, Mexico, Spain, India. भारत में 18,655 मृत्यु अभी तक हो चुकी है। जो तीसरा कॉलम है वो आप अगर गौर से देखेंगे उसमें मैंने डेथ्स के हिसाब से अरेंज किया है। तो भारत फिर भी अभी डेथ्स के हिसाब से भी 8वें स्थान पर है। ये जो डेटा है मैंने नॉर्वेजियन वेबसाइट से लिया है, मुझे काफी एक्यूरेट लगता है। तो इस डेटा में अपडेट्स भी होते रहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ एक स्कैंडिनेविया का देश स्वीडन सबसे नीचे, वो टॉप 20 में है। द स्वीडन इज, आई एम नॉट एबल टू हाइड इट, बट स्वीडन समवेयर लाइज with the 5,000 deaths, it lies in the top 20. Otherwise, most of the countries there is no other country of Scandinavia which is in the list. तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि डेथ्स इन नॉर्वे 251, 251 लोगों की मृत्यु हुई नॉर्वे में। और ये एक्चुअली यहाँ पर जो ईस्टर हमारे यहाँ हुआ था, ईस्टर का समय, उससे पहले ही जितनी डेथ्स होनी थी वो ज्यादातर हो गई थी। उसके बाद से हमें केसेस नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। स्वीडन 5,420, 5,420 डेथ्स। तो दोनों में 20 गुने का फर्क है, अराउंड 20 टाइम्स मोर मोर्टेलिटी इन केस ऑफ स्वीडन एज कंपेयर टू नॉर्वे. If we take population density wise, it is 4.7 per 100,000 in Norway and 53.7 per 100,000 in Sweden. Even by population rates, it is around 10 times more people who have died and still dying in Sweden. Sweden population, of course, is more than Norway, almost double, but still 20 times deaths raises a question, why did it happen with countries with similar culture, similar demography, similar civic sense, similar political structure? मतलब हम यहाँ पर भारत और बांग्लादेश या भारत और पाकिस्तान को नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम दो बराबर जैसे संस्कृतियों को, बराबर जैसे जिनका राजनीतिक संरचना है, जहाँ के लोग जिस तरह से जीते हैं, जो यहाँ की जीवन शैली है वो एक जैसी है, फिर भी कोरोना के मृत्यु में ऐसा क्यों अंतर दिख रहा है? कोरोना के केसेस में इतना डिफरेंस क्यों दिख रहा है? Why there is a difference in corona deaths in these two lands? If we understand this, then probably we will be able to address the situation all over the world. It's a small sample. आप कह सकते हैं कि नॉर्वे की जनसंख्या तो शायद मेरे ख्याल से अगर पूरे दरियागंज में घूम जाए तो उतनी जनसंख्या आपको मिल जाएगी. So it's such a small population, so you can say कि नहीं, you cannot project it in India कि we have a huge, we are like billion people, so we can't compare Norway with India. Understood, that is true, but we can probably take like a pilot project जैसे करते हैं कि हम कोई एक जिले को इमेजिन करते हैं और उस जिले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर हम पूरे देश में ले जाते हैं किसी भी चीज में. उसी तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आप इसको देख सकते हैं कि कोई दो देश जो हैं जहां पर चलो बहुत कम पॉपुलेशन है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस इन द कोरोना पैटर्न. सो हाउ वी कैन कंपेयर इट विद द सिचुएशन इन इंडिया? तो अब देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टोटल कंफर्म्ड कोविड डेथ्स पर मिलियन पीपल. Sweden is going much higher than rest of the all three countries, Denmark, Finland, Norway. It's not only Norway, every other country have handled it in a different way than Sweden. And Sweden is one of the best countries in terms of health parameters in the world. And you can't say that Sweden is some kind of
underdeveloped or they don't know how to do the things right. They are in fact one of the best countries in whole Scandinavia itself. They are better than Norway in many features, and they have very good cultural environment. Sweden is one of the most developed countries that you can say in the world in the parameters also. Then why there is a difference in Sweden as compared to Denmark? And it's not like a marginal difference, it's a huge gap that we see. सो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि एक स्वीडन कितना ज्यादा अंतर है डेनमार्क और नॉर्वे से। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर भारत को भारत से ही कंपेयर करें, यानी कि भारत के अंदर में ही हम कुछ ऐसा बदलाव ले सकते हैं कि जिससे कि हमारा कर्व जल्दी फ्लैटन हो जाए, हम ऊपर की तरफ नहीं जाएं? ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम स्वीडन की दिशा में नहीं जाकर डेनमार्क की दिशा में जाएं, या फिनलैंड की दिशा में जाएं, या नॉर्वे की दिशा में जाएं? How we can change the direction? What is the strategy that these countries are using? If we understand that, probably we have some kind of solutions. तो जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री फिनलैंड जाके उसको दिल्ली में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम फिनलैंड नहीं है, ऐसी बात नहीं, हम कर सकते हैं। दे हैव इनफैक्ट रिप्लिकेटेड मच ऑफ द जो स्कूल कल्चर। आप मैं स्कूल के फोटोज दिखाऊंगा, आप उसको दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया जिस तरह से फोटो लगाते हैं उससे काफी मिलती जुलती हैं। तो उन्होंने काफी कुछ उस तरह का एनवायरनमेंट बिल्ड किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो वहां हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता है, ऐसा इनफैक्ट विथ प्रेजेंट काइंड ऑफ political willpower and the economy that India has, it can in fact do whatever steps it can, it will try to do. Population, in spite of population thing, the political willpower is very good in India, and it does things what it wants to do. And one of the things that I will say about whole Scandinavia is, in case of calamities, in case of disaster, and this should happen to whole world, you have to follow the government rules. You have to follow what WHO says. You have to follow what the politics or the healthcare people, they decide for the country. And we just have to stick to it. Sweden may have failed in number of corona deaths, but they just followed what the government said, and they still believe that there is going to be a herd immunity, there is going to be a flattening of curve, and they will do, in fact, in the end, they will have a good result. That's what the Sweden is saying, and in fact, the world is looking at Sweden in the way that if they try to do it, then if they try to do it Sweden way, probably they will be succeeding. So many people are actually copying the Swedish strategy in spite of the difference in the number of deaths. It's all because the people of the Sweden or Norway or Denmark or Finland, they just stick to what are the government directives. तो ये हमें मानकर चलना है कि हमारी जो सरकार है, भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार, उसके पास एक बहुत ही अच्छा ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करता है कि कैसे क्या क्या स्टेप लेने हैं। उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि उन्होंने नहीं ठीक से किया, गलत किया, लेकिन जनता की जिम्मेवारी यही है कि वो अनार्की नहीं क्रिएट करे, अराजकता नहीं लाए। और जो भी सरकार कहती है कि हाँ लॉकडाउन रहना है तो लॉकडाउन रहें, लॉकडाउन नहीं रहना है, इस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं तो उस तरह के लें। आपको एक तरह से विश्वास करना पड़ेगा सरकारी तंत्र पर, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है उनके पास एक तरह की अच्छी ब्यूरोक्रेसी होती है, और कोरोना के केस में किसी को भी पता नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि गलती हो गई, लेकिन वो गलती भी जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क थी, कैलकुलेटेड गलती थी, कैलकुलेटेड मिस्टेक्स हो रहे हैं इस समय, हर जगह हो रहे हैं। तो उसमें जनता को सबसे पहले उसको भरोसे पर रखना है, जो कि स्कैंडिनेविया में दे ब्लाइंडली बिलीव once they have selected a government, they will just stick to what they are saying. Yes, what is the conclusion that they say? Sigrid Folkestad, a researcher, he says that lockdown in Norway has been successful in reducing the pressure on the healthcare system. If Norway would have followed the more lenient Swedish response, the peak number of COVID-19 hospitalizations would have been 3 times higher. तो ये जो एक प्रश्न उठता है कि लॉकडाउन सही है या नहीं, इज लॉकडाउन राइट और नॉट? तो yes, lockdown actually helped, and there is a proof here that Norway ensured a lockdown and Sweden didn't, and we see a huge difference. So lockdown worked, at least in this part of the continent. So we can say that
if we didn't have lockdown in Norway, we could have had 3 times more cases. और ये डिफरेंस जो है, मैं एक डॉक्टर की तरह कह रहा हूं, मुझे स्पष्ट तौर पर दिखा है कि यहाँ पर हमारे पास 800 वेंटिलेटर थे पूरे देश में, और जिसमें से बस 200 वेंटिलेटर मैक्सिमम जब पीक था यहाँ पर तब उसके प्रयोग में लाए गए। मेरे शहर में 3 वेंटिलेटर थे, उस तीनों वेंटिलेटर में पूरे पीरियड में, कोरोना पीरियड में, बस 2 वेंटिलेटर, हमारे 2 मरीजों के लिए 2 वेंटिलेटर यूज हुए, बाकी यूज ही नहीं हुए। जबकि सोच सकता है कि 3 वेंटिलेटर जो मेरे अस्पताल में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अगर 10 पेशेंट आ जाते तो 7 लोग मर जाते। तो इतने अगर नहीं आए वो हेल्थ केयर सिस्टम में, हमारे अस्पताल में नहीं आए, इसीलिए हम बच गए। अगर वो आते तो शायद, ये नहीं कह सकते, इटली में जो हालत हुई आपने सुना होगा। तो वी नीड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम. Even Indian hospitals, they have quite competent, they have a lot of ventilators. If you combine the private and the public healthcare, if you combine both, they have a good healthcare system. I have worked in Lok Nayak Jayaprakash Hospital in Delhi, which is right now a COVID center. So that is my alma mater, Maulana Azad Medical College. So I have worked there, and we have a very good system. We have a very good intensive care system up there, and they manage a good number of people. But if unnecessarily burden, जिसको कि कोरोना के हल्की फुल्की सर्दी खांसी है, उन लोगों को, वो लोग सभी लोग अगर अस्पताल भरने लग जाएं तो फिर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और जो देखने में आ रहा है, हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, हमें लगता है कि हम कोरोना से मर ही जाएंगे, जबकि आपने देखा है, हमने यहां भी देखा है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बंद कर दिए गए। One of the lockdown which Norway has implemented and no other country might have implemented, they have closed the hospital. Closed in the sense कि हॉस्पिटल में हमने मरीज लेने ही बंद कर दिए। उनको कहा कि आप रुकिए, बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग होने लगी हॉस्पिटल में, because we realized that hospital is one of the most risky thing to for corona spread. In fact, in Wuhan, in China, where the corona have spread, जो पहला वेव आया था उसमें से 60% पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर ही संक्रमित हुए। They have been infected inside the hospital. So one of the thing which we should lock down first is the hospital itself. You have to screen out ki if somebody is coming for a hernia operation, he has to wait before we are done with corona. Hernia can be managed after 6 months. So he unnecessarily, if he comes in, he may get infected, he may so those things, like how do we separate the patients in government hospitals, that is very important. So we have categorized, like in Delhi also, Lok Nayak Jayaprakash Hospital is a COVID hospital, so it should not get the cases which are not COVID related, or at least one of the areas should not get the cases which are not COVID related. So that thing is very critical, that the countries need to do that. Instead of locking down the rest of the things, they should lock down the hospital also. They should lock down how people are coming to the hospitals. तो हमारे यहाँ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे यहाँ अगर कोई CT स्कैन या MRI कराने आते हैं, if anybody comes for a diagnostic in my setup, then there is we have locked the doors. Nobody can just walk in. We have locked the doors. There will be queries outside, a questionnaire outside, and then they will be asked all those questionnaires. Very rarely they will get in to get an examination. Rarely in the means, if there is an urgency, if it is ruled out that they don't have corona, then only they will get into the system. So to get into the hospital itself is very difficult right now. And even if you have corona, even if somebody is corona positive, if he has no symptoms or mild symptoms, he will not be allowed in the hospital. उसको हॉस्पिटल आने ही नहीं दिया जाएगा अगर उसको नहीं है सिम्टम्स। जिस चीज के लिए भारत में कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि अस्पतालों में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उनको जाने नहीं देते हैं, उनको एडमिट नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए एडमिट। ये चीज यहाँ पर हुआ है कि इनको एडमिट नहीं किया गया, यहाँ पे कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया गया है, यहाँ पर उनको घर में बंद रहने के लिए बोला गया है। अस्पताल पर बर्डन बहुत ही घटा दिया गया है। इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ कोरोना, one of the emptiest hospital we have seen is at the time of the corona. मतलब थे ही नहीं, wards were totally empty. We were totally I mean, I didn't have any work to do at the time of corona because people were not coming to the healthcare facilities, and we saw the curve flattening.
totally. So this worked. Now we are just comparing how Norway and Sweden implemented a lockdown. You see on the right side an empty street with maybe one cyclist going in Norway, in Oslo, and actually one of the busy streets there, that one is. And in Sweden, we see people are partying and there is no social distancing at all. That is from the April picture when the corona was pretty much at high peak. Then also we see there is a difference in how the people were living. The social distancing was not being followed in Sweden. They just took it casually and they tried to build a herd immunity. तो आप देख सकते हैं कि ये एक साधारण पिक्चर है जो दो लोगों ने ली है. एक नॉर्वे की पिक्चर है, एक स्टॉकहोम की पिक्चर है, और दोनों में आपको दिख रहा है कि क्या अंतर है. What's the difference? This is like how the borders, Sweden and Norway border, if you see, it's not like India-Pakistan border. It's just a line. And at least this checkpost, what you are seeing, is a very rare sight between these two borders. But there is a checkpost, of course, but nobody, I mean, you can just cross from Norway to Sweden without any, it's like a thin line and you just cross. And in fact, you can stand at the border and take pictures and there is no police or anything. But at this time in Corona, you see suddenly the police is appearing at the Norway-Sweden border. They are not letting people in without so much of checks. So अभी भी जो है नॉर्वे स्वीडन की सीमा पर काफी ज्यादा इन्होंने, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्वीडन में इतने केस हैं, नॉर्वे में नहीं है, क्योंकि वहां से लोग आने नहीं दे रहे हैं. ये पहली बार हुआ है कि स्वीडन नॉर्वे के बीच में जो सीमा है उसको बंद कर दिया गया है, और काफी रेयर तरह से एंट्री. वहां पर स्वीडन में सब्जियां और सामान बहुत सस्ता मिलता है, तो हम लोग वहां, मेरे बगल में ही है स्वीडन, तो हम लोग जाते थे, जाकर लेके आते थे वहां से. So we used to get cheaper goods from Sweden, but now this is closed. So we can't go to Norway to buy, Sweden to buy something at this time because of the corona situation. तो ये चीज जो है ये इन्होंने शुरू में कर दिया कि इन्होंने सीमा को या बॉर्डर को बंद करना शुरू कर दिया. ये एक चीज थी. स्टॉकहोम देखिए, स्टॉकहोम स्वीडन, हाउ इट इज हैंडलिंग कोरोना. दे आर जस्ट ओपनिंग द बार्स. यहाँ पर नॉर्वे में सारे जो रेस्टोरेंट, खाने के प्लेसेस हैं, वो सब बंद कर दिए गए. तो अभी जैसे हम सोचते हैं कि भारत में क्या अगर लॉकडाउन खुलता है दिल्ली में या बंबई में या पुणे में, जो कि हब्स हैं कोरोना के, तो वहां लॉकडाउन खुलता है तो क्या खोल सकते हैं. तो नॉर्वे में जैसे हमारे यहाँ जो बड़े मॉल्स थे जो जहाँ पे शॉपिंग करते हैं, उसमें उन्होंने काफी चीजें खोल रखी थी, क्योंकि वहां काफी जगह थी, लोग कम थे, तो वहां पर काफी खोल रखी थी. बंद कर रखा था पब्लिक प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट. जैसे स्वीडन में ये खुला हुआ है. In Sweden, you can see the people are just casually having good lunch, and people are enjoying without any social distancing. So this thing was not in Norway. In Norway, they have closed all the restaurants and bars where the people gather together. They have closed cinema halls. They have closed recreation facilities like gym, and they have closed schools. तो वो सब बंद कर दिया. लेकिन जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, दुकानें खुली हुई थी, जो आपके ऑफिसेस में काफी जगह काम चल रहा था जहां जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गैप लगा के. हेल्थ इंडस्ट्री तो खैर खुला ही हुआ था, सारे मेडिसिन के शॉप्स खुले हुए थे. तो वी कैन हैव सम काइंड of course we have to open the businesses, but restaurants like this, I think, is a risky situation which India shouldn't be able to taking this thing, that hotels and restaurants can be kept closed in the hubs of corona. I think that they should not allow this. Now, a kind of positive environment, what Norway experienced is they have जो कहते हैं ना, all is well, हर जगह सब बोल रहे हैं. तो यहाँ पर बच्चों ने पूरे नॉर्वे में आप देखेंगे हर जगह जा कर चिपकाया, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ये सब जो आप देख रहे हैं रेनबो बना हुआ है, ये आपका उस समय कोरोना के समय अलग अलग घरों के चित्र हैं जहां पर हर जगह एक रेनबो दिख रहा है. एंड रेनबो इज अ साइन ऑफ होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट आफ्टर. So this thing which at the same time it is creating a fear also. Everything will be all right means nothing is right at the moment. So you just paste it somewhere, you look at the hope, at the same time you realize that we are not in a good situation right now. तो ये जो डर
और हौसला, ये दोनों जरूरी है। आपके घर में जब ये चिपक जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपके हर घर में, अगर भारत के हर घर में चिपक जाए कि ऑल विल बी वेल, सब जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये अगर हर घर में लिखा जाए तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ, अभी भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी हमें घर में बंद रहना है। तो ये एक तरह का होप ट्रांसमिशन, एंड लाइक corona is spread like a virus, it has become viral and it has infected everybody. The hope should also spread in that way, that we should spread hope, and these are all the children have done it, because आप जानते होंगे कि कोरोना में बच्चों को बहुत कम प्रभाव पड़ा है, तो इसमें बच्चों को वॉलंटियर बनाया गया और बच्चे गए, घूम घूम के आए। एक तो उनको घर में बंद रख के कोई बहुत ज्यादा ये नहीं था, तो जो इंडिया में होता है, इंडिया में बच्चों पर बहुत ज्यादा हम मतलब बच्चे ही जिंदगी है ये होता है, तो यहाँ भी होता है, ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो कोरोना का अफेक्शन है वो बच्चों में बहुत कम है, और बच्चों ने बहुत ही ज्यादा यहाँ वॉलंटियर जैसा काम किया है। ऑफ कोर्स सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करते हुए उन्होंने जगह जगह जाकर ये चिपकाए हैं, छोटे छोटे बच्चों ने, और होप स्प्रेड किया है। तो दैट वे it is a lesson, it starts from the schooling itself, that when a country is in a such situation, the children have to learn how as a society, how we can contribute to the society. And that is something the schools need to do, that instead of putting them all into the bars and into the houses, they have to come out, they have to educate people. And I think people say that no, children will won't follow what is social distancing, children won't understand what is corona. It's reverse. Children are so much educated कि आप अगर हाथ नहीं धोते हैं तो आपका बच्चा कहता है कि पापा आपने हाथ नहीं धोया है, तो वो आपको फिर धुलवाता है। तो ये चीज जो है वो मेरे को तो लगता है कि उल्टा है, बच्चों में बहुत ही उनकी जो लर्निंग पावर है, उनकी जो एजुकेटिंग पावर है टू द सोसाइटी इज वेरी much even in India, that those people think about environment, the children in school, they think about environment, they think about the community, they don't have that much of पर्सनल स्पेस कि नहीं मेरा काम हो गया तो दूसरे का नहीं करना है। बच्चों में बहुत ही ज्यादा एक तरह का सामुदायिक भाव होता है, तो उसको इन्होंने यूज किया है। बैकयार्ड क्विजेस, इट वाज अ थिंग व्हिच हैपेंड इन इंडिया। तंबोला खेल रहे थे लोग, और ये इटली में लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, कहीं कहीं देखा भारत में। तो ये चीजें नॉर्वे में भी हो रही थी कि सब अपने अपने घर में बंद हैं और क्विज चल रहे हैं, इस तरह से यहाँ से ये अनाउंस करके प्रश्न पूछ रही हैं और दूसरे लोग जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह का एक सोशल एनवायरनमेंट, मतलब आप सबसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, आप एक तरह समाज की तरह भी जी रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। तो ये चीज खास नजर आई। मैं सिर्फ ये नॉर्वे का पिक्चर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में भी या भारत के किसी भी जगह पर अगर आप खड़े होते तो आपको इस तरह का पिक्चर दिख सकता था कि लोग आपस में अपने अपने घरों से कोई खेल खेल रहे हैं। So this was a typical sight which we have seen in Corona, that we have come stronger as a community, in fact much stronger as a community after this disease has happened. And we try to cooperate with each other. If somebody is not having some food, then they will supply it to the other person. So, or one person will go to the market and bring for the whole society, rather than everybody going to the market and getting the things. तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाकर, कि हर आदमी बाजार जाने की जरूरत नहीं है, एक आदमी बाजार जाए पूरे मोहल्ले से और सबके ऑर्डर ले ले और जाकर लेके आ जाए। तो जो ऐसी चीजें हमें इनोवेट करनी पड़ेगी कि कैसे हम कम से कम सोशल कांटेक्ट रखें, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा एज अ सोसाइटी ग्रो करें। आप सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप उससे मिल नहीं रहे हैं, आप उससे टच नहीं कर रहे हैं। तो एक फिजिकल डिस्टेंस बट सोशल टुगेदरनेस, ये चीज जो है ये बहुत ही अच्छी चीज डेवलप हुई है, और ये खास करके स्कैंडिनेविया में पहले से रहा है, ना सिर्फ कोरोना, उससे पहले से भी इनका एक, इसको ये लोग दुग्नाद बोलते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि आपको इस पूरे मोहल्ले को सफाई करनी है, तो यूजुअली यू कॉल सम sanitation person in India and he gets it all done. In Norway people do it. हमारा पूरा मोहल्ला मिलके झाड़ू लगाता है और उसको साफ करता है। जैसे ये बाहर की जो पेंट दिख रही है,
ये पेंट अगर करना होगा तो सब मिल के कहेंगे कि चलो अब पेंट करेंगे, और फिर सब मिल के बीच में आएंगे और ये पेंट करना शुरू करेंगे. I think pretty much sure that this house would have been painted every fourth year by people who are living in this house, not by any other. Of course it is costly also, that's why they do it. But ये एक तरह का सामुदायिक बोध होता है कि सब मिलकर ये काम करते हैं, और वही चीज कोरोना के समय में भी देखने को मिली. यस, दिस इज नॉर्वे. यहाँ के लोगों की आदत है दैट दे गो एंड लिव अप इन द हिल्स. जैसे हमारे इंडिया में गांव होता है, आप गांव में जाके अपना छुट्टियां बिताते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह के, इसको बोलते हैं हित्ते या कंट्री हाउसेस. People have these kind of houses up in the hills, and this is the time, like I am on vacation right now for 3 weeks, so I am also going to one of these country houses, and I am going to live there in the forest, up in the hill, and we will have all the goods which we will take from here. वहां पर जाने के बाद वहां कोई बाजार नहीं है, there is no market there. It's like totally stranded place where we just have to live in for a week in the mountain. And if you are an author, जैसे मैं लिखता हूँ, तो I will just write for up in that house, and no social contacts, nothing. I will just live there. But at this time of Corona, even this have been closed. तो ये पिक्चर है अप्रैल की, कि ये सब सारे घर जो हैं वो बंद पड़े थे, क्योंकि फिर भी यहाँ पर एक तरह का बहुत सारे घर आप देख रहे होंगे कि दिख रहे हैं. Even if it is stranded, there are some houses on the hills, and it used to be like everybody on vacation will go there in those country houses. So they have closed this at the time of Corona. They have closed it. Now it is open again. So this is a typical habit. Norwegian cannot live without a country house. Every Norwegian, ये भाड़े पर हम लोग भाड़े पर लेते हैं, बहुत सस्ता भाड़ा होता है, ऊपर जाके झोपड़े में रहिए. और मतलब ये नॉर्वेजियन के लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, that they will spend at least 2 to 3 months of their year in one of these country houses. वहां पर ही रहेंगे वो, और वहीं पे वो जाके पहाड़ चढ़ेंगे और सारी एक्टिविटी करेंगे, मछली मारेंगे. So they will do all these fishing and trekking, all even old people like 70-80 years, and they will just spend their time in these houses. So this was closed. One of the major lockdowns was this, though it looks very minor to maybe to you, but अगर आपकी छुट्टियों का जो मेन स्थान है वो बंद कर देंगे, तो वो एक बड़ी बात थी यहाँ के लिए. But Sweden, you can see there is no difference. It's just like everybody is closely. अप्रैल की तस्वीर है, 21 अप्रैल की, जब काफी ज्यादा कोरोना वहां था, और तब there is no social distancing. आराम से लोग बैठ के, उन्होंने नहीं किया. उनकी स्ट्रैटेजी ही दूसरी थी. उनका हर्ड इम्यूनिटी गलत चीज नहीं होती है. हर्ड इम्यूनिटी एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर 60% से ज्यादा लोगों को कोरोना हो जाए किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, तो वहां पर एक इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, और सारे लोग जो हैं धीरे धीरे करके कोरोना से एक तरह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है. सो दे आर इम्यून टू कोरोना इफ मोर देन 60% ऑफ द पीपल इन अ ज्योग्राफिकल एरिया are affected by corona. So they kind of try to affect 60% of the people. So this is a very dangerous strategy that they used, and that's what the Sweden, as you see, the people are like enjoying life. Yeah, the 21st April, enjoying a summer day with all these close people. Norway, yes, they had a social life, but they have kind of drive-in concert. मतलब आप गाड़ी से आइए, वहां पर गाना वाना चल रहा है, गाड़ी से आइए, सुनकर आगे निकलते जाइए. तो दिस इज समथिंग विच दे डिड इन नॉर्वे, दैट ठीक है, एक परिवार आएगा, वो दूर से वो गाना गा रहे हैं इसके लिए जनाब, और सो दिस इज काइंड ऑफ ड्राइविंग कॉन्सर्ट दैट दे यूज्ड इन नॉर्वे, दैट we will enjoy, we will have a social life, we will have a party, we will have a concert, but you won't be standing close together, but you will just drive through, you will just listen to the music and move away. So this is something, I think, one of the weirdest thing which I have seen in times of corona, that there is a drive-in concert, maybe like Guns N' Roses and all, they will be singing, and you just drive in with a car and hear to them and then drive off. So yes, this is how they have innovated. तो ये कर सकते हैं. भारत में भी जो संगीतकार हैं, बहुत सारे संगीतकारों की शिकायत रही है कि हमें क्यों बंद किया गया लॉकडाउन में, और हम
तो परफॉर्म कर सकते हैं, हमें हमें अभी तक नहीं खोला गया है, तो उनको कर सकते थे कि वो जो है स्ट्रीट पर आ गए और वहां पर गाना गा रहे हैं किसी अच्छे से, और लोग आकर, तो वहां ऑफ कोर्स ये मतलब हर आदमी के पास गाड़ी है ये नहीं कह सकते हैं भारत में, लेकिन कुछ कुछ इस तरह का कि आप आए जाएं देखें जाएं आगे बढ़ें, कि कम लोगों, जैसे हम लोग भगवती के मंदिर के दर्शन में जाते हैं तो फटाफट हमें आगे बढ़ाया जाता है कि दर्शन हो गया निकलो, उस तरह से कुछ गैप कर करके कि गाना चल रहा है, कोई आया थोड़ा सुना आगे बढ़ा फिर दूसरा आया, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक तरह का सामुदायिक कार्यक्रम करना, ये सब चीजें जो होती हैं. Now I will come to the education part, and I think the way we are going to end our session also quite soon. Education part, yes, this is the Prime Minister of Norway, Erna Solberg, one of the women leaders of the world who have done very well in times of Corona, and people are telling that we should have women leaders, as they say, that quote the New Zealand Prime Minister who has done very well, or even in India, the Kerala Education Minister, Health Minister. So yes, we have good women leaders, and they have led from the front, and they have done pretty well control of Corona. So yes, he is showing how to greet. जब स्कूल खुला यहाँ पर तो इन्होंने सिखाया कि कैसे अभिवादन करना चाहिए. प्रधानमंत्री ने खुद जाकर दिखाया कि पैर ऐसे उठा लो और ऐसे अभिवादन करो, या हमारे यहाँ जैसे नमस्ते करते हैं वैसे करना. और इस तरह से स्कूल खुला, बच्चों को एजुकेट किया गया. वंस यू एजुकेट द किड्स, आई वुड से इन टाइम्स ऑफ कोरोना, स्टार्ट विथ एजुकेटिंग द किड्स, दे डू वंडरफुल जॉब ऑफ लर्निंग. दे टीच इवन देयर पेरेंट्स. उल्टा नहीं होता है कि अभिभावक बच्चों को सिखा रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये होता है, लेकिन इन रियलिटी जो है बच्चों को अगर आप सिखा दें तो वो एक मतलब एक इसको स्प्रेड कर देंगे. ये उनमें एक संक्रामक क्षमता होती है, वो आपको नहीं ऐसे आपको हर बात में टोकेंगे बच्चे कि कैसे आप कर रहे हैं, आपने ठीक से हाथ नहीं धोया है. तो वो चीजें हमने देखी है नॉर्वे में भी कि हमारे बच्चे स्कूल से आते थे, वो हमें 50 चीजें बताते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है. दे वर एजुकेटेड सो मच इन द स्कूल अबाउट द hygiene and environment and the social distancing and all. So they learned from the school. We didn't learn anywhere. Of course, I am a doctor, so I have some sense, but many people, we don't have schools for adults कि ठीक है आपने टीवी में देख लिया कि हाथ धोना है ऐसा करना, लेकिन आप कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं. ये लोग वहां पढ़ने जाते हैं कि कैसे कोरोना के समय में हमें मैनेज करना है. तो चिल्ड्रन आर एक्चुअली वेरी कन्वेंशनली एजुकेटेड in these times of corona, and they know how to handle it very well, and that is for their future also. ये एक टिपिकल स्कूल है नॉर्वे का, और मैंने देखी है ऐसी दिल्ली के स्कूलों की तस्वीरें ऐसे मैंने देखी है. सरकारी स्कूल हैं नॉर्वे में, आपको पता होगा कि स्कैंडिनेविया में ही पूरी तरह से सिर्फ सरकारी स्कूल होते हैं. तो ये एक तरह का सरकारी विद्यालय है, और कोई ऐसा कुछ हाई फाई आपको शायद नहीं नजर आए. एक डेस्क है, चेयर है, एक कमरा है जिसमें लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे ही चौक वाले ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, चौक से लिखने वाले यहाँ वही होते हैं, और तब उनको पढ़ाया जाता है. और ये जो शिक्षिका दिख रही हैं वो पूरी घूमती हैं एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी, इस तरह से. ये कह सकते हैं कि भारत में इससे कहीं ज्यादा विद्यार्थी होते हैं. मे बी 100 दे सिट इन वन क्लास इन इंडिया, or maybe 50 something. That is one thing, but they have divided into sections, और उनके बीच में काफी गैप रखा गया है इस समय में, क्योंकि नॉर्मल समय में यहाँ भी 30-40 बच्चे दिखते हैं एक क्लास में, और काफी क्राउडेड होता है नॉर्वे में भी. तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी सरकारी स्कूल में काफी क्राउडेड एनवायरनमेंट ही होता है. 30 से 40 तो दिख जाएंगे आपको एक क्लास में. So here they have distributed, like they have done 20, maybe then 20, maybe in some other class, and they are having a kind of social distance. But this is a typical education environment in Norway. और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनकी भाषा है, ऊपर में लिखा है वेलकॉमन. यहाँ की भाषा नॉर्वेजियन है, और जो नॉर्वेजियन मुश्किल से 50 लाख लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में, जो यहाँ के लोग हैं. और फिर भी इनकी भाषा अंग्रेजी नहीं बनी है. इन्होंने अपनी मातृभाषा को मुख्य भाषा बना कर रखा है. तो भारत जो कि करोड़ों का देश है, तो ये जरूरी है कि वहां पर हिंदी में, या जो स्थानीय भाषा है पंजाबी में, बंगाली में, मैथिली में,
तमिल में, तेलुगु में बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे उनको समझ में आएगा। और देन ऑफ कोर्स दे लर्न इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, जैसे हम सब ने सीखा है। जो हिंदी माध्यम विद्यालय से पढ़े होंगे उन्होंने अंग्रेजी तो सीख ही ली है और अच्छी बोलते हैं। मैंने खुद भी हिंदी माध्यम विद्यालय से पढ़ी है, and I can talk a very quite nice in English. So you know that we have kind of environment which the education system relies a lot on understanding of people. और जैसे मेरे बच्चे भारत से आकर यहाँ पढ़ते हैं, उनको तो नॉर्वेजियन नहीं आती है, तो उनको शुरू में बस इसी पे लगाया जाता है कि उनको भाषा आ जाए नॉर्वेजियन, और फिर उनको आ गई, फिर उसके बाद उस मातृभाषा में सबको सिखाते हैं। तो देन दे we have realized that it creates a wonderful environment. I had a friend in India who was very good in mathematics up to class 10th grade, and then when we were in the intermediate in class 11th, then suddenly he couldn't do well because all the subjects, जितनी भी IIT की तैयारी की हमारे गाइड वगैरह थे वो सब सारे इंग्लिश में होते थे। जो फिजिक्स की किताबें थी वो इंग्लिश में थी, रेस्निक हैलिडे वगैरह, तो उसको वो उसमें नहीं अडेप्ट कर पाया। नहीं, फाइनली he couldn't survive and he is in village, he runs his business there, but he was one of the best in mathematics that we had in Hindi. जब तक उसको हिंदी में पढ़ाया गया वो बहुत टॉप पे था, और जैसे ही उसका लैंग्वेज बदला वो नहीं, he couldn't clear IIT. In fact, so this happened because of the language barrier that we face in India, in the villages or in the, so this barrier is completely gone in Norway. Everybody is educated in Norwegian, so yes, that is what they learn. 60% of the school time is in outdoor. 40% सिर्फ कक्षा में पढ़ाई जाती है, बंद क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। 60% विद्यालय का जो होता है वो बाहर जंगल में होता है। And I remember this often in my schooling days that we used to sit outside. जब गर्मी होती थी तो हम लोग को बाहर बिठा के, पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाते थे। और यही होता था बिहार में स्कूलों में कि चलो अभी बहुत धूप है, बाहर चल के बैठते हैं, और वहां पे पढ़ाते थे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपने, मतलब टोपी पहनी हुई है, जैकेट पहना हुआ है, काफी ठंड होती है यहाँ पर, -20 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन फिर भी 60% समय स्कूल के बाहर बर्फ गिर रही हो, बारिश हो रही हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो बाहर ले जाते हैं। तो ये चीज जो दिख रही है नॉर्वे में, ये आपको करना ही है। और इससे क्या होता है, बच्चों को सर्दी होगी, ऑफ कोर्स, ठंड होती है, बारिश हो रही होती है, बर्फ गिर रही होती है, बच्चे बीमार होते हैं उस टाइम। बट देन दिस हैपेंस सो ऑफन that they get immune to it, because they know they have to live in Norway, so they have to live in the snow, there is no other way, you have to live in that kind of environment. So एक तरह का Spartan attitude they develop, like to live in that environment, they have to spend 60% of school is in outdoor. And this is one thing if they do in India, मतलब हम लोग इंडिया में बच्चों को काफी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनको संभाल कर रखते हैं, तो वो बीमार पड़ने लगते हैं। वो यहाँ नहीं होता है, यहाँ बीमार पड़ना बचपन में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दे बिकम इम्यून टू इट। आज जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, व्हेन वी टॉक ऑफ ग्रोइंग इम्यूनिटी इन द कम्युनिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रोइंग इम्यूनिटी फ्रॉम द चाइल्डहुड। यू हैव टू पुश द चाइल्ड आउट इन द एनवायरमेंट, feel the air, feel the water what we have, and then he has to adapt to the nature, get exposed to the viruses. One of the thing that children need to know. ये हो सकता है कि भारत में अगर आज कम लोग मर रहे हैं, इसकी एक वजह है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है एक संक्रमित पर्यावरण में जीकर। तो in terms of immunity, India is doing good because everybody has maybe eaten a street momo on the street side, or had pakoda in the railway cabin, and of course we have a kind of different we are exposed to different kind of flora and fauna. So that thing we are saying in Norway also, that 60% of the school has to be in outdoor. Yes, they have to go for what they say, ut på tur, aldri sur, out on a walk and never get ill. From the age of childhood to the age of people die, 80-90 years of age, and they have been infected with corona, but they didn't have symptoms, which we have seen in Norway, that 90 साल के आदमी को कोरोना हो गया और उसको वेंटिलेटर तो क्या, उसको हल्की सी सर्दी खांसी हुई, कुछ खास, क्योंकि वो बचपन से ही जो है ना पहाड़ों पे चढ़ने की आदत उनकी
चलो वॉक पे चलो, ये यहाँ के कल्चर में है। तो ये भारत में भी आप देखते होंगे कि लोगों को, जो हमारे से अगले पहले की पीढ़ी है, उनको आदत है चलने की, वो चलते हैं रोज। they can't sit idle in the home, they will just walk every day. So as they say, you have to walk 10,000 steps a day, so they do it. And that's what they start from the childhood, that they have to take out in the, this is the maybe some school scene that every day they have to go out for walking. So this is kind of cultural thing that have to do. And yes, even old people, families, they have to, this is a typical sight of Norway. Everybody is doing this. I mean, ये आप देख रहे हैं कि एक माँ है जो अपने बच्चे को सीने से लगाकर और फिर चले जा रही है, उसके पीछे एक बूढ़े जनाब हैं और उनके पीछे, और मेरे ख्याल से हाथ में क्रचेस व्रचेस लेके भी, लेकिन ये लोग, पहाड़ अच्छी खासी स्लोप है नीचे, वहां से चढ़ के आ रहे हैं। तो ये चीज जो है ये आपको नॉर्वे में दिखेगी। और ये भारत में भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड के लोग या हिमाचल के लोग काफी ज्यादा स्वस्थ होते हैं। उसकी एक वजह है कि उनका नॉर्मल जो उनकी दिनचर्या है, इन देयर डेली लाइफ इन हिमालयाज, पीपल वॉक, even if they have to go to the market, they have to walk, they have to go up the slope and do it. So जो flatlands में है, people who live in Bihar, UP, in the flatlands, they have to go on the walk, they have to cover what the people of Uttarakhand do, or the people of Himalayas do, or the people of Norway do, for example. So we have to be on the same step by being physically active for the future. And thank you. I think if we have any questions, so we can probably take. Komal, now you can take over. I think I am done with the presentation. Yes, sir. Thank you so much, sir. One of the things that you mentioned about the language barrier, yes, we must admit this fact in India. Still, the English medium and Hindi medium is quite featured a lot, because you have been into this. You have studied in through Hindi medium yourself, and then doing well in the other medium as well. So अभी भी ऐसा है, मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानती हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पर जो रिसर्च कर रहे हैं या अपनी डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं, उनके साथ ये समस्या बराबर आती है कि एकेडमिक लेवल पर उनको इंग्लिश मीडियम इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि उनको हिंदी मीडियम का मटेरियल ही नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। जैसे मैं तो खैर फिलॉसफी स्टूडेंट हूँ, तो फिलॉसफी में जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय दर्शन का जितना भी फैक्ट आपको मिलेगा, अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, संस्कृत के मटेरियल्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इंडियन फिलॉसफी को पढ़ पाना, जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है अभी भी, कि लोग इंग्लिश बोलने वालों को सुपीरियर देखते हैं और हिंदी बोलने वाले को या हिंदी मीडियम परस्यू करने वाले को एक इन्फीरियोरिटी के साथ देखा जाता है। So I am very glad कि you have put up this point. And sir, on a personal note, I would like to ask कि आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर होते हुए we all know how much a doctor has to do, and कितना समय होता है उनके पास और कितना नहीं होता है, ये भी सब लोग भली भांति जानते हैं। तो आपने ऐसा समय कैसे निकाला कि आप लेखक बनकर उभर पाए अपने आप को? इस फील्ड में आपने कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया और ये कैसे आया आपको? हाँ, ये प्रश्न है, लेकिन आप देखेंगे कि कई सारे डॉक्टर जो हैं वो पेंटर हो जाते हैं, या कई सारे डॉक्टर, पलाश सेन करके एक डॉक्टर हैं, वो म्यूजिशियन बन गए हैं, और ऐसे कई सारे चिकित्सक होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह होती है कि हमारी जो बाकी जिंदगी है वो तो मेलोडीज में है, मतलब हमें तो बीमारियों के बीच में रहना है, और जैसा आपने बताया ये काफी व्यस्त होता है, तो हमें उससे वापस निकलने के लिए एक वेंट ढूंढना होता है। और जो हमारी कोरोना के समय में मैंने बात कही कि हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए, तो उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ करना आता है। तो मुझे गाना बजाना तो आता नहीं है, पेंटिंग आती नहीं है, लिखना जो है वो शायद मेरे लिए एक वेंट है। तो वो समय की जहां तक बात है, तो जैसे डॉक्टर समय मैनेज करना भी सीख जाता है। उसके सामने 50 पेशेंट हैं, तो आप देखते होंगे कि फटाफट निपटाया, एक मरीज को दूसरे को बुलाया, आपको भी लगता है कि ये 2 मिनट में डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया, लेकिन उनको पता है कि 3 घंटे में उनको 50 मरीज देखने हैं। हम लोग जब LNJP में थे, 150 मरीज होते थे बाहर, और उन सबको फटाफट, तो हमें पता होता है 3 मिनट में, तो हमारे लिए एवरी 5 मिनट को कैसे निकालना है वो मालूम होता है। तो मैं जो किताब भी जो लिखी है उसमें पार्किंग लॉट में लिखी है,
या मेरी पत्नी शॉपिंग कर रही है तो मैं बैठ के वहां पर लिख रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने किताब को पूरा किया है। तो और ये आपको नजर आएगा मेरी किताब में भी कि मैंने, जो कई लोगों ने पढ़ा है कि आपके किताब में अध्याय या इस तरह से बने हुए हैं, तो वो वही है, वो अध्याय वहां पर खत्म हुआ जहां पर शॉपिंग खत्म हुई होगी मेरी बीवी की। तो इस तरह से हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। तो ऑफ कोर्स जो अगर मैं फुल टाइम लिखूं तो बहुत अलग तरह से लिखूंगा, और अभी जो लिखता हूं तो मैं नॉन फिक्शन लिखता हूं, क्योंकि उसमें पार्ट पार्ट में बात आगे कहानी होती है। That's great utilization of time, I must say. हाँ सर, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ सवाल किए हैं कि ऐसी कौन सी हेल्थ फैसिलिटी, वैसे तो आपने सब कुछ कह ही दिया है, लेकिन ऐसी कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज के टर्म्स में जो इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए? नहीं, वन ऑफ द थिंग दैट इंडिया नीड्स टू डू इज, एक चीज बोलते हैं कि पूरे हेल्थ सिस्टम को सरकारी कर दो। ये बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया को पब्लिक हेल्थ केयर करना चाहिए, और प्राइवेट हेल्थ केयर में जो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं करप्शन है या बहुत वहाँ मारामारी होती है, प्राइवेट में काफी कंपटीशन, मैंने खुद भी देखा है। मैं करप्शन किसको बोलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन मैंने देखा है कमीशन बाजी होती है। मैं डायग्नोस्टिक्स में था, अल्ट्रासाउंड में, तो उसमें कमीशन बाजी होती है कि डॉक्टर आपके पास तभी भेजेंगे मरीज जब आप उनको 20-25% जो टेस्ट की फीस है वो आप देंगे। तो ये सब चीजें होती थी, तो इसलिए बोलते हैं कि प्राइवेट सिस्टम को बंद किया जाए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव अ बिलियन, मतलब यहाँ इनकी 50 लाख की जनसंख्या है, और उसके लिए इनका 30% जीडीपी जो है सिर्फ हेल्थ केयर में चला जाता है। तो और इनको कोई पाकिस्तान से लड़ने के लिए सेना लगानी नहीं है, इनके पास कोई आस, तो हमारा जो डिफेंस बजट है बहुत बड़ा है, चीन भी अब आ गया है, मतलब पहले से है। तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने जानती होंगी 1% से भी कम हमारा शिक्षा बजट है, स्वास्थ्य बजट का भी यही हाल है। तो हम कहाँ से बढ़ाएंगे? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, गरीबों को जन कल्याण देना है, तो वी कांट अफोर्ड टू हैव अ पब्लिक हेल्थ केयर की। और हमारे यहाँ इतने बीमार लोग हैं, जितना हमारा ऑलरेडी फ्री है। एलएनजेपी में चाहे तो आप भी जा सकते हैं, आपका फ्री में हो जाएगा इलाज, किसी का भी हो जाएगा। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज होता है। So it's there. We have a public healthcare system, but we can't have 100% public healthcare system. But what we can have is a hybrid healthcare system with quality regulations. यानी कि एक क्वालिटी कंट्रोल। आप हर्निया का ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए नहीं मांग सकते हैं। आपको सरकार को कहना होगा कि भैया ये दिस इज द कैप, दैट दिस इज हर्निया ऑपरेशन कॉस्ट दिस मच, एंड एवरी प्राइवेट, अगर कोई लग्जरी बेड लेता है तो ठीक है, उसका मतलब वो एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल की प्राइवेट कितना पैसा चार्ज कर सकती है वो एक सरकार निर्धारित कर दे। दूसरी चीज की सरकार, इवन इफ प्राइवेट पे सरकार का हक नहीं है, फोर्टिस हॉस्पिटल सरकार की नहीं है, लेकिन वहां पर किस तरह की गतिविधियां होती हैं, वहां किस तरह के ट्रीटमेंट का पैटर्न है वो कैसा हो। जैसे मैं यहाँ पर सरकारी सिस्टम के बावजूद मैं प्राइवेट में हूँ, मैं यहाँ प्राइवेट रन करता हूँ, तो लेकिन हमारी सब कुछ जो है वो सरकार की नजरों में है। मतलब हमें सरकार आकर चेक करती है 2-3 महीने पे, ठीक कर रहे हो कि नहीं काम, और फिर वो सारे सरकारी नियम सारे हमें लगा दिए गए हैं कि मरीज से कितना चार्ज करेंगे, मरीज को कितनी देर वेटिंग कराएंगे, एक मरीज को कितना वेटिंग टाइम दे सकते हैं, ये सारी चीजें जो सरकार तय करती है। हमारा बस काम है प्राइवेट की तरह से रन करना, अपना इन्वेस्ट करना और रन करना, लेकिन वहां कैसे हेल्थ केयर देंगे दैट इज डन बाय सो दैट यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया, कि भाई टेस्ट का इतना लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये नहीं चल सकता है कि आपने किसी से 2000 ले लिए, किसी से 5000 ले लिए, किसी से, तो ये चीज जो है वो बंद होनी चाहिए, और उस पर सरकारी नियंत्रण जरूरी है। सरकारी अस्पताल तो नहीं हो सकता है। दिस इज वन थिंग आई विल से। यस फैजान, वन क्वेश्चन। Yeah, Fazan, unmute yourself, then only you'll ask question. Sorry. Yeah, sir. In Norway, we have seen many athletes from there, and the sports regarding they not go to the school; they go to the club, especially. There is a various clubs over there. The school are not organizing the sports thing in the Norway. Is it like this is going on over there? इसके network में problem है भाई। No, actually, Session चल रहा है उधर? there is a lot of sport. Something is wrong with the network. There is are you able to see me? Yeah, there is a lot of sports in the school itself, and they have what we have is a kind of, even in America this is there, that we have amateur clubs and professional clubs. Amateur clubs are which come from school and colleges,
So we have the school teams and college teams, and they are amateur clubs. And the professional clubs, which are like, we get basketball players from America, in fact, to we get professional people from America to play in our basketball team here. और so we have a club culture. आपको पता होगा, जैसे बार्सिलोना में जो खेल रहे हैं, FC बार्सिलोना में, तो वो सब स्पेनिश नहीं है, और वहां पर मेसी आके खेल रहे हैं जैसे, तो वो प्रोफेशनल ग्रुप होता है. इवन इन यूएस दैट इज देयर, एंड वी हैव एन एमेच्योर क्लब्स इवन इन स्पेन और इवन इन नॉर्वे. सो वहां पर आपको जो स्पोर्ट्स वाले दिखेंगे वो दिखेंगे आपको स्कूल कॉलेजेस वाले. तो होता है, मतलब इनका काफी बड़ा, सरकारी स्कूल का एक बहुत बड़ा, जो मैंने बताया, आउटडोर एक्टिविटीज, इवन द ग्राउंड्स दे हैव अ ह्यूज. इनफैक्ट जब हम लोग शुरू में आए तो कहते हैं पढ़ाते कब है, मतलब पूरे टाइम तो बच्चे खेलते रहते हैं बाहर. 60% मैंने कहा कि बाहर जंगल में घूमते रहते हैं. So that is one concern that Indian parents have, कि पढ़ाएंगे कब, at least teach them something. So that but if you remember, in India we had that kind of system that we used to spend much time outside playing in villages rather than spending time in the school. So that thing is there. Yes. Sir, one question from the viewer. Sir, malls को open करना चाहिए या नहीं in India? हाँ, इंडिया में मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे जो बड़े हब्स हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, और मतलब जो पुणे हो गया जैसे, तो हाँ मैंने देखा है. मतलब दिल्ली में बहुत बड़ा मॉल है, जो नोएडा का, उसका नाम भूल रहा हूँ, ग्रेट इंडिया प्लेस, या वो जो है, मतलब. और मैं इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा गया था, जहाँ बहुत ही वीरान जगह है वो इफेक्टिवली, और वहां भी एक मॉल मैंने देखा. उस मॉल में भी खड़े होने की जगह नहीं थी. तो एक्चुअली मॉल आर ह्यूज. इनफैक्ट यू कैन मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हमारी जहां पर अगर यही मॉल दरभंगा में खुल जाए या कोई छोटी जगह पे खुल जाए, तो वहां पर फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करना आसान होगा. वहां कोरोना केसेस भी कम है, वहां डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी खोल सकती है. बट मेरे ख्याल से जो ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा क्राउडेड मॉल्स हैं, वहां पर उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां नहीं कर पा रहे हैं मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. So they have to be, I think the district authority have to choose कि कहाँ पर चल सकता है, कहाँ पर नहीं चल सकता है. जैसे अब आप कहेंगे कि उत्तराखंड में कोई मॉल है, उसको बंद कर दो. उसको क्यों बंद? वहाँ वैसे ही लोग बहुत कम है, तो क्या कितने लोग होंगे मॉल में? राइट. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने ओवरव्यू दिया. हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एक डिफरेंट रीजन से हैं, तो वहाँ के लोगों के बारे में, कि किस तरह उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन को सीरियसली लिया है, उसके बारे में हाईलाइट करेंगे चीजें. सर, ऑन अ पर्सनल नोट, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर लेटेस्ट बुक कूली लाइंस. जैसे तो पिछले साल आई है, अगली वाली शायद आने ही वाली है हाल में. इफ यू वांना शेयर सम लाइट ऑन दैट बुक, because that book is especially about the indentured laborers, and we have seen what happened in India right now with the migrant laborers situation. So if you would like to discuss something about that. Yeah, actually in colonial India, मतलब 19वीं सदी, 19th सेंचुरी के एंड पार्ट से 20th सेंचुरी 1920 तक अंग्रेज जो है हमारे यहाँ से लाखों लोग को उठा के ले गए डिफरेंट कंट्रीज में, फिजी में, मॉरिशस में, मतलब उन द्वीपों पर, वेस्ट इंडीज में जाके छोड़ दिया है, जिसके अभी शिव नारायण चंद्र पॉल और ये सब जो आप क्रिकेटर सुनते होंगे हिंदी नाम वाले, सुनील नारायण, ये सब उनकी संतान है. तो ये सब बिहार यूपी से लेके गए थे यहाँ पर से. गिरमिटिया बोलते थे उनको, गिरमिटिया मजदूर. दे हैव गॉन ऑन एन एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट वो बोल नहीं पाते थे, गिरमेंट बोलते बोलते वो गिरमिटिया हो गया. तो वो गिरमिटिया लोग जो गए यहाँ से, लाखों लोग, और इसको मैंने अपनी किताब में दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन कहा है ये चीज, क्योंकि लाखों लोग जहाज से उठा के बारी बारी से खेप दर खेप उठा के कहीं द्वीप पर छोड़ दिया, जहां से वो लौट भी नहीं पाए. अब उनकी छठी जनरेशन चल रही है, एंड दे स्पीक भोजपुरी. मनी ऑफ देम स्पीक भोजपुरी. आई हैव बीन टू नीदरलैंड एंड इंटरव्यूड देम, और बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन आज तक कभी वो इंडिया गए ही नहीं है. उनको कभी इंडिया जाने का मौका नहीं मिला है. दे हैव देयर तबला और ढोलक लेके बैठ जाते हैं, कीर्तन करते हैं, हारमोनियम सबको बजाना आता है. मतलब मुझे लगा कि मैं किसी गाँव में आ गया हूँ, भारत के गाँव में, और वो लोग सारे नीदरलैंड डच स्पीकर्स हैं, एंड दे स्पीक भोजपुरी. सो दैट काइंड ऑफ माइग्रेशन विच हैज टेकन प्लेस एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड, और उन सब का जो अब अलग अलग कंट्रीज में जो उन सब की
कैसे गए थे, महिलाओं के साथ क्या हुआ, महिलाएं बहुत सारी भाग कर गई थी इंडिया से क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए थी, तो वो उन सब की महिलाओं का वहाँ बहुत ज्यादा राइट्स हो गया, वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई, जो गयाना की प्रधानमंत्री बन गई। तो इस तरह का उनका अपवर्ड कर्व देखा गया, और वही जब वापस आई अपने गांव बिहार में टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड, सी सीज देयर इज नो रोड, द वीमेन आर स्टिल इन द पर्दा, मतलब सब घूंघट में हैं, उनको कुछ काम नहीं दिया जा रहा है, और ये आके वहां भाषण दे रही है, वहां की वही मतलब छोटी जातियों से उठ के गए होंगे, जहाज पर कौन जाएगा किसान खेती करने, गन्ना की खेती करने के लिए, तो वो ऐसी जातियों से उठ के गए थे, उनके परिवार तो वही है वहां पर, वो जो चमार टोली है वहां पर रहते हैं उनका परिवार, तो वो उनको जो डिफरेंस फील हुआ कि भारत से इतनी दूर जाकर उनको उनका जो ग्रोथ हुआ और उनका जो चीजें हुई पलायन से, तो ये एक तरह से जैसे आपने कहा कि अभी के समय में पलायन जो हो रहा है वो बुरा है, कहते हैं बिहार से पलायन नहीं होना चाहिए, या बिहार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए कि ताकि पलायन कोई नहीं करे। इसके दोनों पहलू हैं, बिहार से पलायन अगर हुआ है, प्रवास अगर हुआ है, प्रवीण झा अगर बिहार से गया है या कोई कहीं से चला गया है, तो होता क्या है कि संस्कृति बढ़ती भी इसी तरह से है। अगर आदमी घूमे नहीं, अपनी जगह नहीं बदले, अपनी जड़ पे ही रहे, अगर मनुष्य अफ्रीका में ही रह जाता फिर तो अगर मूव नहीं करता, तो ये दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल से। हाँ संतोष जी नमस्ते, आप भी दिख रहे हैं अब। सर ईस्ट फाउंडेशन के ट्रस्टी सर भी हमारे साथ हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं। एंड सर अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। उनको अनम्यूट करना होगा आपको शायद। मुझे कहा है। जी कैसे हैं सर आप? हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ मैं देख ही रहा था, मैं आपको सुन भी रहा था, और एक्चुअली हम लोग का एक काम ही हो रहा है जो आपने देखा होगा, मैंने फेसबुक पे अपडेट भी किया, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि हम लोग थोड़ा सा ये इस स्टैचू को बना रहे हैं। उनकी नाक वगैरह टूट गई थी, महाराजा तो रमेश्वर, वो हमारा महाराजा रमेश्वर सिंह का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बैठ के आपका देख भी रहा था, और हम काम भी कर रहे थे। वो दिल्ली की टीम है रथ, वो कर रही है। हमारे साथ आशीष जी भी आए हुए हैं आज। प्रवीण जी हैं, हाई कर दीजिए। नमस्कार आशीष जी, गोड़ लगे छी। गोड़ लगे छी। तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो इस बीच में मैं आपका सुन भी रहा था। बहुत बेहतर लगा मुझे। मैं तो आपको कई बार सुन भी चुका हूँ, कई तरीके से पढ़ता ही रहता हूँ आपको। ये हम लोग का सर एक प्रयास था जो कोमल ने शुरू किया, और कोमल की इच्छा थी कि हम लोग जो हमारे जो संपर्क में स्पीकर हैं, अच्छे वक्ता हैं, मैं इनके टीम में शामिल करूं, और मुझे आपसे बेहतर कोई और नहीं लगा। और एक कौतुक जी हैं, उनको भी मैंने बोला था, उनका शायद वो भी बोलेंगे अब। तो अच्छा लगा सर, बनते बनते एक जो कड़ी बन जाती है, और आप कहाँ मैं कहाँ, बाकी विचार जब एक मिलता है तो ऐसा ही बढ़िया सा काम होता है। थैंक यू सर, आपने बोला, मैंने सुना भी, और मुझे भी लगा कि मुझे बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काइंड बीइंग, फैजान, कोमल और सारी टीम को थैंक यू। सर आप लोग सभी अभी रूम में ही रहें। आई जस्ट एंड द ब्रॉडकास्ट एंड वी कैन कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन फर्दर देन। Okay. Thank you to our viewers for being with us, listening to our resource person so patiently. I hope his research and his topic has benefited a lot of people listening to us. And please wait for our third session tomorrow by the same time with Mr. Kautuk Raman from London, England. Thank you.